वो जरा प्लीज। ग्रुप में ना मैंने स्लाइड शेयर कर दी हैं, आप लोग अगर स्लाइड्स वहां से निकाल लें तो आपके लिए बड़ा कंफर्टेबल हो जाएगा उसको फिर मैनेज करना। मूल जरा इधर आओ। ये ट्रेनिंग्स की स्लाइड साइड पे निकल सकती हैं। आवाज नहीं आ रही। उनकी जरूरत नहीं है आवाज की। देखिए इस आप सुन रहे हैं? हाँ मैं सुन रहा हूँ, मैं सुन रहा हूँ। ये एक विंडो, ये विंडो में चल रहे हैं, दो विंडोज हो सकती हैं। एक ये वो देख सकते हो, ये आप उनको शेयर कर सकते हो। मैंने कर दी है। भाई वो दिखा नहीं सकता। ये आ गया। तो आप, हाँ आप चाहे देखना। Let's start. So yesterday we were talking about communication and presentation skills. और उसमें हमने कम्युनिकेशन का जो बेसिक पैरामीटर्स था वो हमने देखा था। So let's start again now. The 5 basic areas of competence which are required for the professionals. Because in communication, you need to be very vigilant and focused. But before that, because your personality is the most important, what you require to do is, the first one is the self-regulation. Now, you know that regulator काम क्या करते हैं? Regulator जो है वो आपके फैन को कम, उसकी स्पीड को कम या ज्यादा करता है। Self-regulation का मतलब क्या है? That you exactly control yourself in a given circumstances. Whatever are the circumstances, you must act and respond accordingly, not react accordingly. The second one, for example, is the self-awareness. This self-awareness comes knowing yourself, what your emotions are, and what those emotions are telling to you. Many times we are working against our emotions. And if we are not having a coordination between emotions and the words, then the message never works well. मैं इसकी छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। देखिए, आपने एक छोटे बच्चे को बुलाना है और आपको प्यार से बुलाना चाहते हैं, तो आप उसके साथ अपनी फीलिंग्स को शो करते हैं। फॉर एग्जांपल, कम हियर माय डियर सन, बच्चे इधर आओ, प्यारे बेटे इधर आओ। आप कहोगे इधर आओ, तो वो इमोशन से खाली वर्ड्स हैं या वो उस कॉन्टेक्स्ट को, उस पर्पस को फुलफिल नहीं कर रहे। तो आपको अपनी जात का पता होना चाहिए कि व्हाट आई एम एट द गिवन सर्कमस्टांसेस, व्हाट इज माय रोल, व्हाट आर माय रिस्पांसिबिलिटीज, एंड इफ यू एक्ट और रिएक्ट लाइक दैट और रिस्पॉन्ड लाइक, then your communication becomes better. Third is the motivation. That whatever you are going to say to the people, are you yourself motivated for that or not? If you are not motivated, what you are going to say, फिर आप उसको effectively deliver भी नहीं कर सकते। Next, एक word होता है empathy, recognizing and reading emotions in others. So you are not only the one who is a part of the communication. The opponent is also a part of communication. You must put yourself in other shoes, in the opponent's shoes, so that you can come to know what he requires. और अगर आपको उसका पता नहीं है, उसके स्टेट ऑफ माइंड का पता नहीं है, तो फिर आप कभी भी इफेक्टिव कम्युनिकेशन इंश्योर नहीं कर सकते। लिहाजा recognizing what the others' emotions are regarding the words you are going to deliver, they are also very important, because if you do not know them, if you do not respect them, your message may become corrupt or you may not act accordingly. So ultimately, the message validity or the message effectivity may be lessened, और शायद वो आपके उन ऑब्जेक्टिव्स को पूरा ना कर पाए जिसके लिए आप कम्युनिकेट करते हो। फॉर एग्जांपल, यू आर टॉकिंग टू योर सीनियर। नाउ सीनियर इज इन अ डिफरेंट मूड, आपके साथ उसकी फ्रैंकनेस भी है, लेकिन आप उस फ्रैंकनेस का फायदा उठाते हो, बट यू नेवर कंसीडर द कॉन्टेक्स्ट और द सिचुएशन विद द सीनियर इज। फिर जब आप उससे बात करोगे तो सीनियर रिस्पॉन्स विल बी नेगेटिव टुवर्ड्स योर इमोशंस।
vice versa. And the last one, gentlemen, is the social skills that you must acquire relating to and influencing others. Man is a social animal. If you are not good in social circles, if you do not take care of the parameters, of the values in which you are standing and you are going to communicate. जैसे मैंने कल example दी थी, in a football stadium or in a cricket stadium, you cannot talk about the Quran or the religious sermons because people would not like, because they are not in a mood. But if you are in a mosque, then you cannot talk about the films, videos, or the songs because it is not the right place. Emotions are different. And secondly, when I talk about the social skills, then you need to know what the age circle is where you are going to talk about. If they are older, they are elder, then you have to be respectful to them. If they are in senior position, even you are wrong, then you have to be very simple and humble to convey your message. The people are going to listen to you. But if you are right, your tone is not right, you do not know how to interact with the people, तो फिर आप शायद उस तरीके से अपना मैसेज देते तरीके से ना दे सकते। एक वर्ड होता है, मैं आपसे क्वेश्चन करता हूँ, एनीबॉडी नोज द मीनिंग्स ऑफ इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन? जरा मुझे कोई बताएंगे प्लीज? एनीबॉडी? हेलो? नो आइडिया। जरा थोड़ा सा लाउड बोलिएगा, मीनिंग्स ऑफ इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। Anybody else? हाँ जी, आप सुन रहे हैं मुझे? मुझे जरा इधर आना है, ये देखो क्या है ये। सर जी जी बताएं। सलामुअलैकुम सर। सर मैंने बताया कि नहीं पता, आपको आवाज नहीं गई। हाँ, मेरे ख्याल में आवाज मुझे नहीं आई। सो लेट मी टेक इट नाउ। देखिए, एक होता है कम्युनिकेशन, एक होता है इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, और एक होता है इंटरपर्सनल रिलेशंस। ये तीन चीजें याद रखिएगा। बिजनेस कॉन्टेक्स्ट के अंदर पहली चीज है कम्युनिकेशन, नथिंग इज सेड अंटिल इट इज नॉट सेड। दूसरी चीज है इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, that whatever you say to the people, that must be understandable by the people, and whatever you say, that must have the same meanings to the other people. ये interpersonal communication होती है। मेरी बात समझ आ गई? मैं जो भी आपसे कह रहा हूं उसकी मीनिंग्स मेरे नजदीक और आपके नजदीक अगर सेम हैं तो ये इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन होती है। और इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन इतनी आसानी से नहीं आती। इसके लिए जरूरी होता है जो सारे पैरामीटर्स मैंने 5 आपको पहले बताए हैं कि वो आप उनको एक्सरसाइज कर रहे हो। और जब आपकी कम्युनिकेशन से इंटरपर्सनल के ऊपर चली जाती है तो ये कन्वर्ट हो जाती है इंटरपर्सनल रिलेशंस के अंदर। और रिलेशंस जब बन जाते हैं तो फिर आपकी बुरी बात भी लोगों को बुरी नहीं लगती। मैं एक एग्जांपल देता हूं। 2 फ्रेंड्स, they met after almost 10 years back. दोनों चाय पी रहे थे, बात करते करते खामोश हो गए। फिर एक ने कहा, अच्छा ते फिर दस फिर की होया सी, और वो बात वहीं से शुरू कर देता है। इसका मतलब है कि उनकी खामोशी भी खामोशी नहीं थी। इट इज ओनली बिकॉज ऑफ द इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन कि उनका इंटरपर्सनल रिलेशन इतना स्ट्रॉन्ग है, देयर साइलेंस हैज बिकम देयर कम्युनिकेशन। तो इसलिए ये जरूरी होता है कि आप जब लोगों के साथ कम्युनिकेट करें तो उनकी एज, उनके इमोशंस, उनके साइकोमेट्रिक फैक्टर्स, उनके कल्चर को जरूर ध्यान में रखें। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आपकी कम्युनिकेशन इफेक्टिव नहीं होगी। अब हम आगे की तरफ मूव करते हैं। कल मैंने 2 बातें की थी, कंटेंट और कॉन्टेक्स्ट। मुझे आज इसको रिपीट करने की जरूरत नहीं है
क्योंकि कंटेंट वो वर्ड्स हैं जो आप कहना चाहते हैं, और कॉन्टेक्स्ट वो एनवायरनमेंट है जिसमें आपने वो वर्ड्स कहने हैं। मैंने बड़ी क्लैरिटी के साथ इसको बता दिया। तो देन कम्स टू थिंग्स, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। नंबर वन इज द क्रेडिबिलिटी ऑफ द स्पीकर, एंड नंबर टू इज द कंजीनियलिटी। क्रेडिबिलिटी आपका स्टेटस है, आपकी अथॉरिटी है, आपका इमेज है, आपका कंडक्ट है, आपकी पर्सनालिटी है, आपका करेक्टर है, इधर गुड और बैड। ये आपकी क्रेडिबिलिटी स्टैब्लिश करता है कम्युनिकेशन के अंदर। लाइक देखें, घर में एक बात छोटा भाई कहता है, उसकी वो वैल्यू नहीं होती, वो इतना क्रेडिबल नहीं होता, लेकिन वही बात अगर आपके वालिद कहें तो यू टेक इट सीरियसली। ये होती है क्रेडिबिलिटी। ये पोजीशन की वजह से आती है, मैंने आपको बता दिया, करेक्टर की वजह से आती है, अथॉरिटी की वजह से आती है। अगर आपके पास अथॉरिटी है तो आपकी क्रेडिबिलिटी पहले से मौजूद है। पीपल आर नॉट गोइंग टू डिनाई द फैक्ट्स और द थिंग्स यू आर गोइंग टू से देम। बट इफ यू डोंट हैव द क्रेडिबिलिटी, देन यू हैव टू पुट योर फोर्स, पुट योर एफर्ट्स कि लोग आपके मैसेज को समझें। तो फिर आपकी जिम्मेदारी बन जाती है कि विदाउट क्रेडिबिलिटी, फर्स्ट यू एस्टैब्लिश योर क्रेडिबिलिटी एंड देन टॉक। वो कैसे करेंगे वो मैं कमिंग टाइम्स के अंदर प्रेजेंटेशन स्किल्स में आपको बताऊंगा कि हाउ टू एस्टैब्लिश द क्रेडिबिलिटी। दूसरा होता है कंजेनियलिटी। कंजेनियल का मतलब होता है जो बात आप कहें वो इतनी हम्बल, इतने अच्छे तरीके से कहें कि लोग ना भी आपको सुनना चाहते हो वो फिर भी आपको सुने। This is what is called the congeniality. So in communication, content और context के बाद जो important बहुत चीज आती है वो आपकी credibility और the way you say the things. Credibility what है और congeniality how है, how you deliver your message. अब जब आप मैसेज डिलीवर करते हैं तो आपके 3 बिहेवियर सामने आते हैं, ये नोट कर लें, because attitude is a little thing, but it makes a great difference. If your attitude is not congenial, if your attitude is not positive, your positive things may not be taken positively. But if your attitude is very congenial, is very humble, your bad things may be taken positively. और हमेशा याद रखिएगा, when you communicate, उसमें आपका बिहेवियर बड़ा मैटर करता है। आपके बिहेवियर की 3 सूरतें होती हैं कम्युनिकेशन के अंदर, हम पढ़ाते हैं। नंबर 1 विन लूज, कि आप हर बात के ऊपर जीतना चाहते हैं, आप लोगों को बोलने ही नहीं देते। इस एटीट्यूड को हम कहते हैं अग्रेसिव एटीट्यूड और रिएक्टिव एटीट्यूड। In the presence of aggression or in the presence of you see the angriness, people do not listen to you. वो आपकी बात नहीं सुनते। आपको अपनी बात सुनाने के लिए एमिकेबली अपनी मैसेज को डिलीवर करना होगा। तो पहला आपका एटीट्यूड, और उसमें पहली सिचुएशन ये है कि आप विन लूज के ऊपर जाना चाहते हैं। और विन लूज का मतलब है कि हर सूरत में आप अपनी बात मनवाना चाहते हैं, सो यू आर अ लूजर। For the time being, people may listen to you, but in the longer term, in the longer context, people will not honor your words. They will refute your words. They will not accept them. They will not act on them. If it is a matter of, for example, the corporate sector or the office, the juniors may accept your words in front of your boss, but in the absence of the boss, they will not execute the words. सेकेंड चीज जो बच्चों आती है वो बिहेवियर बड़ा ही जबरदस्त होता है। दैट इज कॉल्ड द विन विन बिहेवियर। विन विन का मतलब होता है खुद भी जियो और दूसरों को भी जीने दो। अब इसको हम नॉर्मली रिस्पॉन्सिव और असर्टिव बिहेवियर भी कहते हैं। दैट यू रिस्पेक्ट अदर्स, यू रिस्पेक्ट देयर डोमेन्स, यू रिस्पेक्ट देयर कल्चर। इफ यू आर टॉकिंग फॉर एग्जांपल टू अ फॉरेनर, आप याद रखिएगा कि आपको उनके कल्चर का पता होना चाहिए, अदरवाइज आप गलती कर दोगे। इसकी बड़ी सिंपल सी एग्जांपल मैं देता हूँ। An American came into Saudi Arabia and he was on a business tour. Americans normally maintain 6 feet or 4 feet distance and they shake hand, firm shake hand
they avoid hugging. While the Arabs have a different culture. अरब्स तो आते हैं, सबसे पहले वो गले मिलते हैं और उसके बाद किस करते हैं। अब जैसे ही गोरा आया और अरब तो फौरन उसके ऊपर चढ़ गया, उसने उसको गले लगाया, उसको किस कर लिया, एंड ही स्टार्टेड टू फील अनकंफर्टेबल। अभी तो कोई बात भी नहीं हुई, ये क्या हुआ? इट वॉज ओनली बिकॉज ऑफ द डिफरेंस ऑफ द कल्चर। हमारी ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर जैसे अकाउंटेंट्स का कल्चर डिफरेंट होता है, मार्केटिंग वालों का कल्चर डिफरेंट होता है, एडमिनिस्ट्रेशन का डिफरेंट होता है, आईटी का डिफरेंट होता है। तो जो कल्चर आपने अकाउंट्स डिपार्टमेंट के अंदर डेवलप किया हुआ है, फॉर गॉड सेक, उस फ्रेम ऑफ माइंड के साथ आप आईटी वालों के साथ मत जाइएगा या मार्केटिंग वालों के पास मत जाइएगा, बिकॉज दे आर वेरी ओपन। अकाउंटेंट्स आर नॉर्मली द रिजर्व पीपल। तो जब आप उनके साथ रिजर्व हो जाओगे, यू विल नॉट ओपन योरसेल्फ, दे विल फील हर्ट, वो आपके साथ ओपन कम्युनिकेशन के ऊपर नहीं आएंगे, एंड यू विल नॉट बी एबल टू डिलीवर योर मैसेज इफेक्टिवली टू देम। लिहाजा कल्चर को भी ध्यान में रखना जरूरी है, तब जाके आप विन विन और रिजल्टिव पोजीशन पे आते हैं। मैं इसको बड़ा सिंपल लफ्जों में कह दूं, लिसन टू दी अदर्स एज वेल। उनका पॉइंट ऑफ व्यू भी सुने, अपना भी सुने, और फिर जो आप फैसला करते हो वो विन विन रेजोल्यूशंस के ऊपर होना चाहिए, ताकि दूसरे फील करें कि आपने उनको रिस्पेक्ट दी और वो आपको रिस्पेक्ट देना शुरू कर देंगे। Ladies and gentlemen, the third thing is very dangerous, lose win. पैसिव यसर्स, जो हर बात पे यस सर यस सर यस सर कहते हैं, आर द मोस्ट डेंजरस पीपल ऑफ द वर्ल्ड, बिकॉज दे नेवर वांट टू विन एंड दे कैन नेवर विन। लिहाजा वो लूज कर देते हैं। इवन दे डू नॉट क्लेम फॉर देयर ओन राइट्स, वो अपने राइट्स को भी क्लेम नहीं करते, and they let the others to win. As an accountant, if you are in a negotiation with the people and you just accept what they say, so ultimately you are going to corrupt the balance sheet. तो आपको अपनी बैलेंस शीट को करप्ट नहीं करना, आपने लूजर नहीं होना, आपने बाय ऑल द मीन्स विनर नहीं होना, आपने अपने बिहेवियर को असर्टिवनेस के ऊपर लेके जाना है, कि आपने खुद भी अपनी रिस्पेक्ट को मेंटेन करना है और दूसरे की रिस्पेक्ट को भी मेंटेन करना है। ये 3 बिहेवियर बच्चों क्लियर हो गए आपको? यस सर, क्लियर। जी सर, हो गया। आगे चलते हैं। ये देखिए एक कोटेशन मैंने लिखी है, स्लाइडें आपको विजिबल हो रही है ना? यस सर, ओके हैं, हो रही हैं। वेरी गुड। सो विद अ बैड एटीट्यूड यू कैन नेवर बिकम अ गुड प्रोफेशनल। इसका मतलब यह है कि बिहेवियर सब कुछ है, और कम्युनिकेशन के अंदर बिहेवियर इज द फर्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। मैं अक्सर कह रहा होता हूं कि लुक एट दिस यूनिवर्स, इज इट नॉट द बिहेवियर ऑफ हिज क्रिएटर? अब नॉर्दर्न एरिया के अंदर जाते हैं, आप चीजों को देखते हैं, आपकी चीखें निकलती हैं, ओह माय गॉड व्हाट अ ब्यूटीफुल सीनरी, व्हाट अ फ्लोइंग ऑफ वाटर, व्हाट आर द बर्ड्स। ये बिहेवियर है अल्लाह ताला का, जो उसने एटीट्यूड है एक्चुअल में अल्लाह ताला का, जो आपको आर्टिफैक्ट की सूरत में, सीन थिंग्स की सूरत में आपके सामने रख दिया और आप उसको देखना शुरू। लिहाजा अपने एटीट्यूड के अंदर वो तमाम चीजें लाने की कोशिश करें जो लोग चाहते हैं। लोग आपको सुनना चाहते हैं, लेकिन अगर आप अच्छे तरीके से बात नहीं करते, लोग आपकी अच्छी बात को भी सुनना नहीं चाहेंगे। और स्पेशली ये इन्वायरमेंट ऑफिस के अंदर, मैं टीचर को आदत होती है, हमें बड़ी बुरी आदत होती है, ट्रेनिंग्स में भी हम अपनी एग्जांपल्स देते हैं। मैं आपको बताऊं, मेरे इन्वायरमेंट ऑफिस का ऐसा है कि मैंने मना किया हुआ है, कोई बंदा इजाजत नहीं लेगा, जिसको आना है मेरे ऑफिस में आए। मैं खाना खाता हूँ, मैं 4 बंदों को अपने साथ बुलाता हूँ, चलो इधर आ जाओ, बैठ के खाना खाओ, और मैं बड़ी नॉर्मल लैंग्वेज उनके साथ, वो इधर आओ, क्या कर रहे हो, गधे तुमने ये काम नहीं किया। अच्छा बात ये है, आप किसी को गधा कहो ना वैसे जरा, वो आपसे नाराज हो जाएगा। इतने सीनियर लोग हैं, आई एम यूजिंग डिफरेंट स्लैंग वर्ड्स, बट दे नो माय एटीट्यूड, व्हाट माय एटीट्यूड इज, आई टेक केयर ऑफ देम। ये है जिसकी बात मैंने पहले की थी, व्हाट इज द क्रेडिबिलिटी। तो आपकी क्रेडिबिलिटी सिर्फ एक चीज से एस्टैब्लिश नहीं होती,
एक्चुअल में लॉन्ग टर्म में आपका एटीट्यूड जो है वो आपकी क्रेडिबिलिटी को बना रहा हो। और जब आपकी क्रेडिबिलिटी स्टैब्लिश हो जाए, फिर आप बुरी बात भी कहो तो लोग उसको अच्छा समझ के हजम कर लेते हैं। कोरोना में मैंने सैलरी डिले की 1 महीना, सबने कहा सर हमें नहीं चाहिए सैलरी। वो भाई क्यों नहीं चाहिए? सर डजंट मैटर, 4 महीने आप सैलरी नहीं देंगे हम नहीं जाएंगे, आप 1 महीने सैलरी तो रोक के रखें किसी की। दिस इज व्हाट वी कॉल द एटीट्यूड टुवर्ड्स द पीपल। क्योंकि उनको पता है इफ वी हैव द बैड टाइम, our head is going to take care of us। तो बीच में जब बुरी बातें आती हैं वो उसको डाइजेस्ट कर लेते हैं। तो आपका एटीट्यूड जूनियर्स के साथ बड़ा अच्छा होना चाहिए, और ये एटीट्यूड ही है जो सब कुछ बनाता है। प्रॉब्लम है, देखिए दिस इज अ वेरी वेरी क्रिटिकल पॉइंट नाउ व्हिच आई एम गोइंग टू डिस्कस। यू आर एन अकाउंटेंट। मैंने अकाउंटेंट की तमाम कैटेगरीज को पढ़ाया है, सीमा को पढ़ाया, यूके एसीसी को पढ़ाया, पिफा को मैंने नहीं पढ़ाया, अब पढ़ा रहा हूँ मैं, ठीक है। आईसीएमए को पढ़ाया, सीए को तो मैंने 20 साल से मैं पढ़ा रहा हूँ, विजिटिंग पे जाता हूँ, यूनिवर्सिटीज में पढ़ाया। मैं बात कर रहा हूँ कि अकाउंटेंट का एटीट्यूड टुवर्ड जूनियर इन मेजॉरिटी ऑफ द केसेस इज नॉट अप्रोप्रिएट। और ये मैं अक्सर कह रहा होता हूँ कि जब आप सीनियर पोजीशन पे जाओगे फिर आपको रियलाइज होगा। सो आई हैव ट्राइड टू चेंज द कल्चर ऑफ द अकाउंटेंट्स। मैंने कल आपसे कहा था कि मेरे स्टूडेंट्स दुनिया की बड़ी बड़ी पोस्ट के ऊपर बैठे हुए हैं, और उसकी रीजन एक ही है, दे हैव चेंज्ड देयरसेल्फ। लेडीज एंड जेंटलमैन, if there is anything permanent in this world, that is change. And if you do not understand the necessity of the change, you can never change yourself. And if you never change yourself, you can never be a good man. So feel the importance of change. मैंने कहा है, if there is anything permanent in this world, that is change. If there is anything continuous in this world, that is discontinuity. And if there is anything certain in this world, that is uncertainty. तो देखो तो सही, आपके इर्द गिर्द की हर चीज रोजाना चेंज हो रही है। आप अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पढ़ लोगे तो इसका ये मतलब नहीं है कि उसमें अपग्रेडेशन नहीं होगी। आपको अपने बिहेवियर के अंदर, अपनी प्रोफेशनल स्किल्स के अंदर हर जगह के ऊपर चेंज लाने की जरूरत है। नेवर बिकम adamant. Try to feel the necessity of the change, because without changing yourself, you cannot change the others. So how can a shitten shepherd can keep its sheep clean? And what to talk about the gold, what to talk about the iron if gold is rusted? So as a leader, as a senior person, you need to change yourself. So first we change ourselves in communication patterns, and then we accept from the others that they will behave like what we desire. पंजाबी का गाना है ना, या अपना किसी नु कर ले या आप किसी दा हो दे लिया। तो किसी को अपना करने के लिए सबसे पहले आपको उसका होना है। और प्रोफेशंस के अंदर याद रखिएगा, आपकी क्रेडिबिलिटी अच्छे एटीट्यूड से, अच्छी कम्युनिकेशन से एक दफा एस्टैब्लिश हो जाए फिर वो खत्म नहीं होती। सो आई एंड माय कम्युनिकेशन लेक्चर्स हियर। मेरा सेकंड जो है वो प्रेजेंटेशन स्किल्स के ऊपर है, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप सामने होते तो मैं पूरे 12 जेस्चर्स व्हाटएवर आई ट्राई माय बेस्ट कि मैं आपको वो जेस्चर्स पूरे करके दिखाऊं। तो हम इस क्वेश्चन आंसर सेशन ले लेते हैं। एनी क्वेश्चन फ्रॉम योर साइड? मैं उसके पहले आंसर्स दे दूं, फिर हम अपना पार्ट 2 शुरू करेंगे। और मैं कोशिश करूंगा कि मैं इन सारी चीजें आपको शेयर करता चला जाऊं, और राइटिंग के वक्त हम अपना स्टाइल भी चेंज करेंगे, प्रेजेंटेशन स्किल्स। जी बच्चों, क्वेश्चंस? नहीं सर, फिलहाल तो नहीं है। इसका मतलब है कुछ भी समझ नहीं आया आपको? नहीं सर, ऐसा नहीं है, समझ में आया, क्वेश्चन कोई नहीं है। अच्छा, ये आपका नहीं है, कोई और बच्चा भाई इसको कोई क्वेश्चन? एहसन है, इब्रार है यहाँ पे इस वक्त ऑनलाइन, और कौन कौन है? जी सर, मैं अबरार हूँ, मैंने ही बोला है कि क्वेश्चन कोई नहीं है। अबैदुल्ला? यस अबैदुल्ला, सर। आपको समझ आ गया? यस सर। जी सर, आपको ऑल समझ आ? यार तब तो बहुत लाइक बच्चे हो फिर, वेरी गुड। ये अच्छा हुआ आपने वीडियो ऑन कर ली। जी, एहसन नदीम है आप? एहसन?
चलें, should I start my second part? Yes, sir. Okay. So now comes the presentation skills. देखो, एक बात याद रखिएगा, अल्लाह ताला छुपा हुआ खजाना थे। अल्लाह खुद कहते हैं कि मैं छुपा हुआ खजाना था और मैंने चाहा कि मैं जाना जाऊं। अब ये जाना ये आसान काम नहीं है। You need to put a lot of efforts to become known to the people. एक टाइम लगा, अल्लाह ताला ने इस कायनात को बनाया। वैसे तो कुन फयाकुन है, लेकिन कुन और फयाकुन के दरमियान के टाइम का किसी को नहीं पता, वो अल्लाह को ही पता है। लेकिन जब अल्लाह ने इस कायनात को बनाया और हमें बनाया, और हमें इसलिए बनाया कि हम उसकी तारीफ करें और उसकी चीज़ों को देखकर प्रेज करें अल्लाह ताला को। तो प्रेजेंटेशन स्किल्स भी ऐसे ही है कि इफ यू आर अ गुड प्रेजेंटर देन यू अर्न योर पोजीशन एंड योर प्लेस very early, at the very early stages. But if you are not a good presenter, मैं आपको बता दूं कि आप बहुत काबिल भी होंगे। You are an outstanding accountant, outstanding executive हैं अपनी competence के अंदर, अपने skills के अंदर, लेकिन आपकी presentation skills अगर अच्छी नहीं है तो फिर आप जल्दी recognize नहीं होते। As I yesterday said, that the most important thing for a promotable executive is his communication skills and presentation skills. आज हम इसको भी ऐड कर लेते हैं। लेकिन आप सुबह को जाते हो, आपने टू पीस पहना हुआ है या शलवार पीस के ऊपर वेस्ट कोट पहनी है, आप अच्छे लगते हो। वेस्ट कोट नहीं पहनोगे, बगैर वेस्ट कोट के और सिंपल शलवार पीस में कितना बड़ा फर्क पड़ जाता है। मैं कोशिश यही करता था कि मेरी क्लास के अंदर हर बच्चा, अगर ये मेरा फेस टू फेस होता तो मेरा सबसे पहला जो फोकस होता वो आपके ड्रेस के ऊपर होता है, बिकॉज इफ आई एम नॉट प्रेजेंटेबल मैं कोई काम भी प्रेजेंटेबल नहीं कर सकता। लिहाजा हम देखते हैं इस कोर्स को, तो प्रेजेंटेशन स्किल्स के अंदर 3 बुनियादी चीजें जिसको आपने मद्देनजर रखना है। नंबर 1, whatever is the topic you are going to present, develop its introduction. अब इंट्रोडक्शन डेवलप करना आसान काम नहीं है। मैं आगे जाके आपको तफसील से बताता हूँ कि हाउ टू डेवलप इंट्रोडक्शन। और इंट्रोडक्शन की 3 से 4 लाइंस ऐसी होती हैं that if you are very good and impressive in those lines, then you can make miracles. You can grab the attention of the audience and they may be with you. Okay, आपने अटेंशन ग्रैब कर ली, आपने जो ओपनिंग है बड़ी अच्छी कर दी। अब दूसरी बात जो आ जाती है दैट इज डिजाइन द बॉडी। देखो मैंने पहले क्या कहा, डेवलप द इंट्रोडक्शन। डेवलप करने का मतलब है कोई भी चीज नॉर्मल पिच के ऊपर शुरू नहीं करनी। आपने करना क्या है, किसी भी चीज को शुरू करने के लिए आपने, ये अगर आपको पेज नजर आ रहा हो, ये फॉर एग्जाम्पल एक मैं पैरामीटर बनाता हूं, तो आपने स्टार्ट यहां से करना है, एट द हाइट पी के ऊपर से स्टार्ट करोगे। जब आप पी के ऊपर से स्टार्ट करोगे तो यू विल ग्रैब द अटेंशन ऑफ द ऑडियंस और वो आपके साथ हो जाएंगे। मैं फॉर एग्जांपल हॉल में एंटर हुआ, कॉर्पोरेट सेक्टर की ट्रेनिंग थी और मैं उस वक्त कोई ज्यादा बड़ा नहीं था क्योंकि मुझे ऑलमोस्ट 20 साल हो गए ये काम करते हुए। They were all the vice presidents of Habib Bank. लाहौर में उनका एक बहुत बड़ी ट्रेनिंग थी, तो मैं एंटर हूँ तो उन्होंने मुझे देखा, यार ये तो बड़ा छोटा सा लड़का है, तो सबने अपना चश्मा नीचे कर लिया। क्योंकि बॉडी लैंग्वेज के अंदर जब कोई अपना चश्मा ऐसे नीचे करके आपको देखना शुरू कर दे तो इसका मतलब होता है कि वो बड़ा क्रिटिकल है। मैं आपको ये करके दिखाता हूँ चश्मा पहन के। ये देखें, इस तरह से उन्होंने चश्मा पहना हुआ था और जैसे सर मैं आपकी हॉल, वीडियो शो नहीं हो रही। वीडियो शो नहीं हो रही। नो सर। हो रही है सर, हो रही है, मेरे पास आ रही है सर हमारे पास आ रही है। बेटा आप अपना देखो, उसमें
जो आपका कंप्यूटर या है उसमें कितनी आ रही है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि कुछ जेस्चर्स ऐसे हैं जिसका जरूरी होता है कि मैं आपको दिखाऊं। चलें, ये देखें, ये चश्मा मैंने पहना हुआ है, तो मैं जैसे एंटर हुआ हॉल में पोडियम के पास गया हूँ, तो अभी वो लड़की मेरा इंट्रोडक्शन करवा रही थी, तो सबके चश्मे ऐसे करके नीचे आ गए और ऐसे करके ऐनक के पीछे से मुझे देखना शुरू हो गया। तो बॉडी लैंग्वेज के अंदर जब आपको कोई इस तरह से देखना शुरू कर दे, तो अंडरस्टैंड इट दैट ही इज वेरी क्रिटिकल टू यू। वो आपको ग्रांटेड लेना शुरू कर देगा, वो आपकी क्रेडिबिलिटी को एक्सेप्ट नहीं करेगा। अब आपको जोर लगाना पड़ेगा। और सारे बूढ़े थे, मेरे पास पूरा ऑडियंस एनालिसिस था, मैं पूरा ऑडियंस को पढ़ के जाता हूँ कि कौन किस रैंक के ऊपर है और क्या उसने किया, क्या अचीवमेंट्स हैं, क्या फेलियर्स हैं। और हबीब बैंक के वाइस प्रेसिडेंट्स की मेजॉरिटी की कोई बड़ी अचीवमेंट नहीं थी, आए हैं बस वो एक सिस्टम के तहत ऊपर आ गए। तो मैंने उस लड़की से कहा प्लीज स्टॉप माय इंट्रोडक्शन। देखो ना, एक अनयूजुअल सी चीज हो गई, उसने स्टॉप कर दिया इंट्रोडक्शन और मैंने कहा प्लीज आप बैठ जाएं। लड़की वहां पे चली गई। अब एवरीबॉडी वाज स्टन्ड, ये क्या कर रहा है बंदा। और मैंने पोडियम के ऊपर ऐसे करके हाथ रखा, मैं आपको खड़ा होकर दिखा देता हूँ। इस तरह से पोडियम पे हाथ रखा, मैंने क्रॉस लेग्स की, और ये बड़ा ऑफेंसिव स्टाइल होता है कॉर्पोरेट सेक्टर के अंदर। और खड़ा होने के बाद मैंने उनसे कहा, लेडीज एंड जेंटलमैन, अल्लाह कुरान में कहते हैं लैसल लिसान इल्ला मा सा, मैं इंसान को उतना ही देता हूं जितनी वो तवज्जो करता है। My question to all honorable vice presidents of Habib Bank Private Limited, what is your contribution in Habib Bank? आप यकीन करोगे बच्चों, जिनके चश्मे इधर थे, एक तो चश्मा ऊपर हो गया, और जो आगे होके बैठे थे वो वापस सीट के ऊपर इस तरह से बड़ा केयरफुल हो गए। और एक या दो बंदों ने कहा होगा सर हमने ये किया ये किया, तो 70-80 वाइस प्रेसिडेंट्स थे, खामोशी से बैठे रहे। इसी तरह से मैं बात कर रहा हूँ डेवलप द इंट्रोडक्शन की। ये इंट्रोडक्शन इतना टेंशन ग्रैबिंग था कि उसके बाद मेरी प्रेजेंटेशन में किसी की हिम्मत नहीं हुई कि मुझसे क्वेश्चन करे। एंड व्हेन आई एंडेड माय प्रेजेंटेशन, पूरा हॉल खड़ा हुआ था, इतनी क्लैपिंग थी। अदरीस कमर उसके होते थे, प्रिंसिपल होते थे। उन्होंने मुझे कहा इफ्तिखार से भी पहली दफा हुआ है कि हर बंदा खड़ा है और क्लैपिंग इतनी ज्यादा हुई है। बेटा मैं ये नहीं कह रहा कि मैंने कोई वहां पे तीर मार दिया, मैं सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ कि ये जो डेवलपिंग ऑफ द इंट्रोडक्शन है किसी भी बात का, ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। ये आपकी डेस्टिनी को डिटरमाइन करता है, इधर यू आर गोइंग टू बी अ लूजर और यू आर गोइंग टू बी द विनर। तो अपना इंट्रोडक्शन डेवलप करना है, अच्छे तरीके से करना है। ये आगे जाके मैं आपको तफसील बताने लगा हूँ कि डेवलप कैसे करना है। और एक और ट्रेनिंग की एग्जांपल देता हूँ। गिफ्ट यूनिवर्सिटी के अंदर सारे प्रोफेसर्स, कोई 140-50 के करीब प्रोफेसर हमने इकट्ठे किए डिफरेंट कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज के। और ट्रेनिंग जब मैं पोडियम के ऊपर गया हूँ तो मैंने जाते ही कहा, हॉल सारा पिन ड्रॉप साइलेंस हो गई। आई एंटर्ड, तो मैंने पोडियम के ऊपर खड़े होके बड़े स्लो टोन के अंदर, ये भी आप देखिएगा, मैं ये बात कर रहा था, आगे जाके मैं बताऊंगा टोन कितनी इंपॉर्टेंट होती है। Ladies and gentlemen, may I know how many of you are teachers? देख रहे हैं मेरी बॉडी लैंग्वेज, मेरी वॉइस किस तरह से वेरी कर रही है। मैं अगेन रिपीट करता हूँ, Ladies and gentlemen, may I know how many of you are teachers? Everybody raised the hand. Yes, we are the teachers. मैंने पूरे हॉल के ऊपर ऐसे करके नजर दौड़ाई, सबको देखा और फिर बड़ी मायूसी के अंदर कहा, Ladies and gentlemen, I'm teaching for the last 20 years. But unfortunately, still I am not a teacher. May I ask you again, how many of you are teachers? तो बच्चों आप यकीन करोगे, सिर्फ 140-50 में से 3 से 4 लोगों के हाथ खड़े हुए थे, बाकी किसी के नहीं। ये ड्रामा मैंने जानबूझ के किया, ये इंट्रोडक्शन डेवलप किया ताकि मैं एक सेंस ऑफ क्यूरियोसिटी क्रिएट कर दूं कि यार ये हमें कह रहे हैं कि मैं तो 20 साल से पढ़ा रहा हूँ
और गिफ्ट यूनिवर्सिटी ने मुझे 2-2 लाख रुपए दे के एक सेमिनार के लिए बुलाया है, ठीक है, और ये कहते हैं कि स्टिल आई एम नॉट अ टीचर। तो एक बड़ा ना पैराडॉक्स क्रिएट हो गया। लेकिन फायदा क्या हुआ उसका कि नाउ दे वर रेडी टू लिसन टू मी कि व्हाई स्टिल आई एम नॉट अ टीचर। और प्रेजेंटेशन का था शुड टीचर स्पीक और टॉक। और बस फिर मेरा टाइम था, मैंने 3 घंटे रगड़ा लगाया उनको एंड इट वाज अ गुड। So developing the introduction is the most important part of your presentation skills. समझ आ गया बच्चों? यस सर। यस सर, Good. Yes, sir. आगे समझ। अच्छा, या पहले वाली भी चली गई? नो नो सर, अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी तरह से समझा रहे हैं, माशाल्लाह से समझ आ। आगे आगे चलें। अब स्टेप नंबर 1 था डेवलपिंग द इंट्रोडक्शन। दूसरा क्या होता है? डिजाइन द बॉडी। अब जो आपकी बॉडी है, बॉडी का मतलब होता है कि अब जो बात भी आपने कहनी है दैट मस्ट बी सो लॉजिकल इन प्रोग्रेशन कि लोगों को कंफ्यूजन ना हो उसके अंदर। जहां आपने हिंट देना है साइड पे हिंट दे दे, जहां समझाना है वहां पे रुक के समझा लें, जहां पास ऑन करना है ज्यादा डिटेल से बात नहीं करनी, आगे चली जाएं। ये होता है डिजाइनिंग ऑफ द बॉडी। इसमें आप जो चीज डालना चाहें वो डाल दें, वो आगे जाके हम देखते हैं बॉडी को डिजाइन कैसे करना है। और तीसरा होता है प्लान द कंक्लूजन। दैट्स अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। तो डेवलप, डिजाइन एंड देन प्लान द कंक्लूजन। कंक्लूजन जहां मैंने स्टार्ट किया था ना, दैट वाज एट द हाइट। बच्चों कंक्लूजन इससे भी ऊपर की हाइट पे होना चाहिए। वो इंग्लिश लिटरेचर में कहते हैं टू डाई इन यूथ इज द मोस्ट रोमांटिक थिंग। ठीक है, जवानी की मौत का मजा ही कुछ और है। तो जब आप अपनी प्रेजेंटेशन को खत्म करते हो उस वक्त, व्हेन पीपल वांट टू लिसन टू यू, जब लोग आपको सुनना चाह रहे हैं और आप अपनी बात को खत्म कर दें, तो आप समझ लें कि आपके मैसेज ने इतना जबरदस्त इम्पैक्ट डाला है लोगों के ऊपर कि लोग हमेशा आपको सुनना चाहेंगे। तो कंक्लूजन हमेशा जहां से स्टार्ट किया था उससे भी 4 पॉइंट्स ऊपर जाके कंक्लूड करें। मैं कंक्लूजन की एक एग्जांपल आपको देता हूं। आई कैप, मैं आई कैप का ट्रेनर भी हूं। तो आई कैप की ट्रेनिंग्स हो रही थी, तो दैट वाज माय फर्स्ट ट्रेनिंग इन, मैं उसमें एज अ ट्रेनी गया हुआ था। चार्टर्ड अकाउंटेंट एक इंग्लैंड से क्वालिफाई होके आए। उन्होंने मुझे कहा कि प्रेजेंटेशन डेफिनेटली हम एंड पे दे रहे थे, ट्रेन द ट्रेनर्स था। तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट की, सर मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मुझे आखिर की प्रेजेंटेशन दे दें। उसने मेरी बात मान ली। उसको पता नहीं था मैं ड्रामा क्या करने जा रहा हूँ। लीजिए मेरी प्रेजेंटेशन एंड के ऊपर आई और मुझे उन्होंने बड़े आयरॉनिकली कहा कि इफ्तार साहब, देखने में तो आप बड़े फिट लगते हैं लेकिन आप जो है डर गए लगता है प्रेजेंटेशन से। मैंने कहा नहीं सर ये बात नहीं, बस तबीयत ठीक नहीं थी। शुड आई स्टार्ट माय प्रेजेंटेशन सर? ओह व्हाई नॉट, आ जाओ। आई स्टार्टेड माय प्रेजेंटेशन। दरमियान में एक जगह पे आके मैंने उनसे कहा, ओके लेडीज एंड जेंटलमैन क्लोज योर आईज। अच्छा 2-4 ने क्लोज कर ली, बाकी सब मेरी तरफ देखते रहे। इस बात को आपने जरा बेटा गौर से सुनना है और मुझे देखना है। फिर मैंने कहा, माय रिस्पेक्टेबल कोलीग्स प्लीज क्लोज योर आईज। तो 10-12 ने और बंद कर ली, बाकी की खुली रही। अब देख रहे हो, अब मुझे अपना स्टाइल चेंज करना था। मैंने फिर जोर से कहा, लेडीज एंड जेंटलमैन वुड यू प्लीज क्लोज योर आईज, आई एम टेलिंग यू अगेन एंड अगेन। सबने आंखें बंद कर ली। इसका मतलब है जो मैंने चेंज की बात की थी ना, ये वो चेंज है कि आपको कॉन्टेक्स्ट के मुताबिक, नीड्स के मुताबिक अपने एटीट्यूड को, अपनी वॉइस को, अपनी टोन को, अपनी बॉडी लैंग्वेज को चेंज करना है, एक जैसा नहीं रहना। अब सबने आंखें बंद कर ली। वो बेचारे जो मेरे टीचर थे, he was very old, बट वो आराम से बैठे रहे, उन्होंने आंखें खोल के रखी। मैंने ऐसे करके झुका हूं नीचे। मैंने कहा, माय रिस्पेक्टेबल टीचर वुड यू प्लीज क्लोज योर आईज, माय रिक्वेस्ट। उसने भी बंद कर ली।
is I am planning my conclusion. Gentlemen, वो ये समझ रहे थे कि पता नहीं भी प्रेजेंटेशन कितनी चलेगी, उनको अंदाजा नहीं था उनके साथ होने वाला क्या है. Then I told them what the Muslims are, what you were. आज आप क्राउड बन गए, सब कुछ हुआ. बातें करने के बाद मैंने कहा ओके लेडीज एंड जेंटलमैन, ओपन योर आईज. सबने एकदम से आंखें खोल दी, क्योंकि मैंने उनको बता दिया था कि आप कितने बुरे हो, आपके साथ बुरा क्यों हो. सबने एकदम से आंखें खोली और मैंने क्या कहा, लेडीज एंड जेंटलमैन, I am not talking about your physical eyes. I'm talking that you must open your spiritual eyes so you realize what is the right and what is the wrong. Thank you very much. और मैं क्या के स्टेज से नीचे उतर गया. नहीं, मेरे टीचर भी खड़े हो गए, सब खड़े हो गए, क्लैपिंग शुरू हो गई. और जब मैं बाहर आया तो अल्टीमेटली फिर लोगों ने जनाब बहुत कुछ मुझसे, कोई ऑटोग्राफ मांगता है, कोई कुछ करता है, सारे पाकिस्तान से लोग उसमें आए हुए थे. तो इस तरह आपका इंट्रोडक्शन बड़ा इंपॉर्टेंट होता है ना बच्चों. इसी तरह से कंक्लूजन को भी बड़ा आउट क्लास प्लान करना है. ये बात आपकी नॉर्मल लाइफ की हो, आपकी अकाउंट्स की प्रेजेंटेशन हो, आपके नेगोशिएशंस हो, आपकी ऑफिस प्रेजेंटेशंस हो, तो आपने इन 3 चीजों को बड़ा गौर से देखना है. अब डेवलपिंग इंट्रोडक्शन, यही बात की थी मैंने. वो कैसे डेवलप करना है कि आप बड़े इफेक्टिव हो जाएं. तो उसके लिए पहली चीज, जैसे मैंने कहा था कि पहले 2 मिनट्स वेरी इंपॉर्टेंट. तो पहली चीज आपने क्या करनी है, प्रिपेयर ऑडियंस फॉर कंटेंट ऑफ प्रेजेंटेशन. आपने उनको बताना है कि आज की मेरी प्रेजेंटेशंस के अंदर मैं इन चीजों के ऊपर बात करूंगा. तो लोगों का जहन बन जाता है, आपको जोर नहीं लगाना पड़ता समझाने के लिए. आप जब स्विच करते हो एक टॉपिक से दूसरे के ऊपर, तो उनको अंदाजा होता है कि अब आप क्या बात कर रहे हो. फिर दूसरा है क्लियरली स्टेट योर पर्पस, दैट व्हाई आई एम डिलीवरिंग दिस प्रेजेंटेशन. उसकी रीजन आपने पूरी बतानी. जैसे मैंने कहा था, हाउ मेनी ऑफ योर टीचर्स, सबने कहा हम टीचर्स हैं. मैंने कहा अनफॉर्चुनेटली आई एम टीचिंग फॉर द लास्ट 20 years बट आई एम नॉट अ टीचर. तो पर्पस ये था कि टीचर डाई लिटिल डेथ्स एवरी डे. अगर हम तैयार नहीं होके आते तो हम जितने मर्जी अच्छे टीचर हों, हम टीचर अच्छे नहीं रहते. और तीसरी चीज, रिलेट टॉपिक टू द ऑडियंस. जैसे मैंने ऑडियंस के साथ रिलेट किया था, हाउ मेनी ऑफ योर टीचर्स, व्हेन यू टॉक अबाउट द ऑडियंस, ऑडियंस उसके अंदर इंटरेस्ट लेती है. अब अगर आप मेरे आमने सामने बैठे होते और मैं कहता अबरार कैसे हो, अबरार को खुशी होती बिकॉज मैं उसका नाम लेकर उसको बुला. तो जितना ऑडियंस के क्लोज हो जाओगे उतना ही ऑडियंस आपके क्लोज होना शुरू हो जाएगी. और आप ऑडियंस को अपने टॉपिक के साथ रिलेट करें. लाइक अबरार, यू आर अ वेरी गुड अकाउंटेंट बिकॉज अकाउंटेंट्स वर्क ऑन ऑब्जेक्टिविटी. तो मैंने आपको एक मैसेज दे दिया कि अकाउंटेंट और ऑब्जेक्टिविटी एक जैसी होती है, लेकिन अबरार बहुत अच्छा है. या कमर नदीम जो है, ही इज नॉट अ गुड गाय. कमर, आई एम सॉरी, आप अच्छे होंगे, मैं सिर्फ मिसाल दे रहा हूं. देन पर्सनलाइज द इंफॉर्मेशन. जैसे मैंने 2 जगह के ऊपर पर्सनलाइज इंफॉर्मेशन दी, बी बैंक की और गिफ्ट यूनिवर्सिटी की. तो आप कोशिश करें कि जो इंफॉर्मेशन आप देने जा रहे हैं उसको पर्सनलाइज कर लें. जब आप पर्सनलाइज करते हो तो व्हाट हैपेंस, दैट people start to take interest in that. First 2 minutes clear हो गए बच्चों? जी सर, हो गया. जी सर. अच्छा, जरा इसको रिपीट कीजिएगा. एहसन जरा रिपीट कीजिएगा 4 पॉइंट्स कौन कौन से जो मैंने बताए. कमर नदीम, आप रिपीट करोगे? सर, हम अपने कंटेंट को और प्रेजेंटेशन को ऑडियंस के मुताबिक प्रिपेयर करते हैं. पहला ये पॉइंट है. और दूसरा है क्लियरली स्टेट पर्पस. हमारा जो बात करने का मकसद है, हम उसको क्लियर करें कि हमने ये पॉइंट या टॉपिक्स हमने
डिस्कस करने हैं। और तीसरा ठीक है। पॉइंट है टॉपिक टू ऑडियंस। हमारा जो टॉपिक है वो रिलेट होना चाहिए ऑडियंस के मुताबिक। आपने अगर मिसाल दी थी कि मैं टीचर हूँ और मैं जो बात करने जा रहा हूँ वो टीचर ही के मुताबिक हो, ताकि मैं उससे कनेक्ट हो सकूँ उनसे। और चौथा पॉइंट था पर्सनलाइज द इंफॉर्मेशन, कि हम जो इंफॉर्मेशन देते हैं वो उसको पर्सनलाइज करते हैं। पर्सनलाइज करने का मतलब क्या होता है? मसल के पर्सनल जो हमारी इंफॉर्मेशन या पर्सनल एक्सपीरियंस है उसके बारे में बताते हैं। जबरदस्त जी, थैंक यू वेरी मच। लेट्स मूव फॉरवर्ड। अब इस प्रेजेंटेशन के जब आप ओपनिंग कर रहे होते हो तो यू नीड सम अटेंशन गेटर्स, जिसको अटेंशन ग्रैबिंग्स भी कहते हैं। एक बच्चों को मैंने प्रेजेंटेशन करवाया था, उसने आते ही ना फेक पिस्टल था उसके पास, उसने पटाखे डाले हुए थे बीच में, हॉल के अंदर आते ही उसने फायर करना शुरू कर दिया। अब क्या था, अटेंशन ग्रैबिंग था। तो उसकी प्रेजेंटेशन का जो टॉपिक था दैट वाज टेररिज्म इन पाकिस्तान। और उसने वो फायरिंग करने के बाद 4-5 पटाखे चलाने के बाद लोग डर गए ना, वो पिस्टल ऐसे लग रहा था ओरिजिनल है। उसने समझाया कि टेररिज्म होती क्या है, कि जब कोई भी ऐसा एक्ट करें जिसमें लोगों को पता ही ना हो कि वो बेचारे मासूम और आप जुल्म शुरू कर दें, तो ये टेररिज्म होता है। तो अटेंशन ग्रैबर उसने इस तरह से किया। आप कैसे कर सकते हो? आस्क अ प्रोवोकेटिव चैलेंजिंग क्वेश्चन। मिसाल के तौर पे मैं आपसे क्वेश्चन करता हूं और मेरे सामने आप बैठे हो, मैं कहता हूं क्या तुम अच्छे अकाउंटेंट हो? ये चैलेंजिंग क्वेश्चन है। आप अपना बेस्ट सामने लेकर आओगे मेरे, बिकॉज नाउ यू वांट टू प्रूव योरसेल्फ। क्या हम पाकिस्तानी सबसे गंदी कौम नहीं बन गए जब ये बात करेंगे? ये चैलेंजिंग क्वेश्चन है। फिर आप डिफेंड करोगे नहीं यार हम तो नहीं है, कुछ लोग होंगे। इज इट नॉट वी आर नॉट टेकिंग केयर ऑफ आवर फोरफादर्स एंड आवर पेरेंट्स? चैलेंजिंग क्वेश्चन बन गया। Is it not that we are the most backward nation of the world? Challenging question बन गया। तो आपने क्वेश्चंस शुरू के ऐसे पूछने हैं जिसमें ऑडियंस इन्वॉल्व हो जाए और वो उसको डिफेंड करना शुरू कर दे। आपके लिए आसानी हो जाएगी। इन्वॉल्व द ऑडियंस, इन्वॉल्व हो जाएंगे। मैंने एक ट्रेनिंग के अंदर क्या किया, मैंने कैंडीज रख दी, 4-4 कैंडीज कप्स के अंदर रख दी। और जब मेरी ट्रेनिंग मिडल के अंदर पहुंची तो मैंने कहा हर बंदा अपनी कैंडीज को उठाए। वो कैसे उठाते, वो तो खा चुके थे मेजोरिटी। अब वो शर्मिंदा होने शुरू हो गए। मैंने कहा कितनी बुरी बात है। बताना क्या था कि कोई भी काम करने से पहले किसी और कॉन्टेक्स्ट के अंदर पूछ लें कि इसका मकसद क्या है। किसी चेयर पे बैठने से पहले पूछ लें क्या ये चेयर खाली है, मैं इस पे बैठ जाऊं, किसी और ने तो नहीं बैठना। तो ये वो चीजें होती हैं जो आपके ऑडियंस को इन्वॉल्व कर लेती हैं। देन रेलेवेंट कोट और साइटेशन। अब रेलेवेंट कोट क्या होती है? आप टेररिज्म की बात कर रहे हो, इट इज द मोस्ट हीनियस एक्ट ऑफ द ह्यूमैनिटी अगेंस्ट ह्यूमैनिटी। ये रेलेवेंट कोट मैंने कर दी। इफ आई जस्ट वांट टू टेल यू अबाउट योर हेल्थ, तो मैं कह दूंगा दैट लेडीज एंड जेंटलमैन, we are the most unhealthy nation because we have more parks and less hospitals. मोहन को बता दे जरा सर को। So this is what we call the relevant quote or a citation. अब state a startling fact or statistics. इसी तरह से कुछ facts and figure को आपको लेके जाना होता है। आपने कोई बात करनी है, जब तक आप facts और figures के ऊपर बात नहीं करते आपकी बात acceptable नहीं होती। You must be having the most relevant quotes, the factual data that nobody can deny. इससे आपकी अथॉरिटी क्रिएट होती है और ये अटेंशन ग्रैबर्स होते हैं। अपील टू द ह्यूमन नेचर। कोई भी काम करें वो ह्यूमन नेचर को अपील करें।
that shouldn't offend them. Tell a story that relates to the topic. वो कहानी शानी सुना दें जो इस टॉपिक से रिलेट हो रही हो कि मैं लास्ट मरी गया हूं, मैंने रास्ते में देखा ऐसे ऐसे था, तो मुझे बड़ा महसूस हुआ कि पाकिस्तान में तो बहुत ज्यादा गुर्बत है, हम लाहौर में बैठ के क्या सोचते हैं और एक्चुअल में हो क्या रहा है पाकिस्तान के अंदर। तो कोई ऐसी स्टोरी रिलेट करें, बेतहाशा स्टोरीज होती हैं, किसी ना किसी स्टोरी को रिलेट कर दें, वो चाहे आपसे रिलेटेड हो किसी और चीज से रिलेटेड। रेफर टू अ रिसेंट वेल पब्लिसाइज्ड इवेंट। कल जब धमाका हुआ काबुल के अंदर, इतने लोग मारे गए कि टेररिज्म की वर्स्ट एग्जांपल है। अब इसको फाइनेंस के साथ जोड़ना हो कैसे करोगे कि yesterday the bomb blast in Kabul has further deteriorated its economy because its share वो नीचे चले गए, बिजनेस जो है वो 4 दिन के लिए जैम। तो इस तरह से आपने ओपनिंग प्रेजेंटेशन के अंदर अटेंशन ग्रैबर बनना है, और जितना ज्यादा रेलेवेंट डेटा होगा, फैक्चुअल होगा, खूबसूरत डेटा होगा, अभी मैंने कहा था ना अल्लाह को खूबसूरती पसंद है, तो लोग उतना ही आपके साथ अटैच हो जाएंगे। तो ये देखें फोकस ऑफ अटेंशन कहाँ होता है। आपने ये अटेंशन एंड इंटरेस्ट से अपनी प्रेजेंटेशन शुरू की है, नीचे से नहीं की। आप इसको नीचे से ऊपर की तरफ भी ला सकते थे, आपने ऊपर से शुरू की, टॉप के ऊपर से प्रेजेंटेशन शुरू की, और ये करते 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 देखें आप नीचे बॉडी में गए, कितना नीचे चले गए। अब जैसे मैं बोलता चला जा रहा हूं तो हो सकता है कुछ लोगों को नींद आनी शुरू हो जाए, बिकॉज मेरे पास वो टूल्स नहीं है कि मैं आपको इंगेज कर लूं, मुझे पता ही नहीं है कौन कहाँ बैठा है। तो होता ये है, प्रेजेंटेशन जब सेंटर तक पहुंचती है तो बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं जो बड़ी बोरिंग होती हैं, लोगों को डाइजेस्ट करवानी है। मैं चैलेंज से कह सकता हूं, अगर आप मेरे सामने बैठे हो, एक बंदा भी यॉर्निंग के ऊपर जाके दिखाए या सो के दिखाए, सवाल ही पैदा नहीं होता। 4-4 घंटे की प्रेजेंटेशन होती है और खत्म करता हूँ, थक चुके होते हैं लोग, फिर भी कहते हैं सर कंटिन्यू करें, बिकॉज आई इन्वॉल्व देम इन माय प्रेजेंटेशन। और फिर आहिस्ता आहिस्ता जहाँ बहुत बोरिंग हो जाए फिर ऊपर की तरफ लेकर जाएं, और ये देखें एंड और स्टार्ट ऑलमोस्ट सिमिलर है, लेकिन ये एक स्टेप 2 स्टेप ऊपर ही होना चाहिए। फोकस ऑफ अटेंशन क्लियर हो गया बच्चों? यस सर। जी सर। आगे चलते हैं। Some ways to focus audience attention। मैंने कंक्लूड करता हूँ, स्टोरीज हैं, आप रेलेवेंट स्टोरीज बताएं, एनालॉजीज हैं, सिमिलर थिंग्स और वर्ड्स वो आप बताएं, जोक्स एंड ह्यूमर इफ डायरेक्टली रिलेटेड, अगर जोक्स हैं या ह्यूमर कोई आपके पास है तो आप सुना दें, डजंट मैटर। जैसे मैं अक्सर एक ट्रेनिंग के अंदर, मेरा एक दोस्त है वो अनलकीली आ गया उस ट्रेनिंग में, उसको पता नहीं था प्रेजेंटर मैं हूं, तो मुझे पीछे से ना तंग करता जाए। अब उसको मुश्किल हो रहा था कंट्रोल करना, कभी मुझे आंख मार दे कभी कुछ करे कभी कुछ करे। तो फिर मैंने उसको एक शेर सुनाया वहां पे और उसका नाम लेके सुनाया, तो लोग तो जानते थे उसको, वो इतना फिट बैठा है कि लोग मेरी प्रेजेंटेशन को भूल गए और उसको लान तान करना शुरू हो गया। मैंने कहा ये एक्चुअली में ना सोर्स ऑफ डिस्टर्बेंस है, और उसको उठाया और आगे की तरफ लेकर आ गया। तो मैंने आर्टिफैक्ट्स चेंज किए। आर्टिफैक्ट्स बच्चों को होते हैं जिस एनवायरनमेंट के अंदर आप बात कर रहे होते हो, लाइक यहाँ पे ये कप, चाय का कप है, ये आर्टिफैक्ट्स के अंदर आता है। ये जो टेबल्स मेरी पड़ी हुई है या जो सामान पड़ा हुआ है, ये सारे आर्टिफैक्ट्स के अंदर है। तो आर्टिफैक्ट्स का मतलब होता है वो चीजें जो आपके, वो डिस्टर्बिंग नहीं होनी चाहिए, वो हार्मोनियस होनी चाहिए, और जितनी हार्मोनियस होंगी उतना ज्यादा आपको। या आप आर्टिफैक्ट्स के अंदर ये भी कर सकते हो कि प्रैक्टिकल एग्जांपल्स के तौर पे चीजों को साथ ले आए। एंड देन आई कांटेक्ट। Yesterday I told you that 78% of our communication is through body language, और उस 78 का 78% of communication is through eye contact। और अगर आप आई कांटेक्ट अच्छा बना लेते हो तो आप यकीन करें कि आपका मैसेज बड़ा इफेक्टिव हो जाता है। तो कल मैंने आपको एग्जांपल दी थी ना, मैंने अपने बेटे से कहा, ये देखिए ये बैठा हुआ इधर, आपको
बुलाया था कि आप मेरा कैमरा सेट करो, तो आई कांटेक्ट बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। इससे आप लोगों को केयरफुल कर देते हो, आप तो केयरफुल होते हो, लोगों को भी केयरफुल कर देते हो। Some ways to focus audience attention. Now it is very important. इसको आपने अब गौर से सुनना है। पहला है इन्फ्लेक्शन। अब इन्फ्लेक्शन क्या होता है? देखिए ना, आपने किसी को कहना है ना आई लव यू, आप कैसे कहोगे? ऐसा जरा दोहराइएगा, आई लव यू कहिएगा। ऐसा कमर, अवैस, अवैस, ये कौन है? रिमशा, रिमशा प्रेजेंट हो बच्चे? बच्चों आप सुन रहे हो मुझे? यस सर, आ रही है आवाज, जी सर। आवाज तो आ रही है आपकी। बड़ा ही रोल है। मैं लेट्स से एक वॉइस इन्फ्लेक्शन क्या होता है? इट इज कॉल्ड द रेजिंग एंड लोवरिंग ऑफ योर वॉइस। अब वो कैसे होती है? लेडीज एंड जेंटलमैन, मे आई नो हाउ मेनी ऑफ यू आर टीचर्स? ये वॉइस इन्फ्लेक्शन है। फिर मैंने एग्जांपल दी थी, वुड यू प्लीज क्लोज योर आईज? ये वॉइस इन्फ्लेक्शन है। इसका मतलब है रेजिंग एंड लोवरिंग ऑफ योर वॉइस इज अ वॉइस इन्फ्लेक्शन। इफ इन योर कम्युनिकेशन आप अपनी वॉइस को रेज नहीं करते, लोअर नहीं करते, एक जैसी सिमत के अंदर लेके चलते हो, आप कभी भी इफेक्टिव नहीं होते। जॉन एलिया का एक शेर है कि उसकी उम्मीद नाज का मुझसे ये मान था, उम्र गुजार दीजिए, उम्र गुजार दी गई। इन्फ्लेक्शन समझ आ गई बच्चों? यस सर। जी सर। यस। आगे चलते हैं। वो कहते हैं पेसिंग। पेस का मतलब समझते हो ना? या जल्दी जल्दी बात को कहना या आहिस्ता आहिस्ता से बात को कह देना। तो जब आप बात बड़ी इंपॉर्टेंट कहने लगते हो ना, दो चीजें जहन में रखना हमेशा, या बिल्कुल स्लो हो जाना या इतनी तेज बात करना कि लोग खुद कान आपकी तरफ लें। Let me tell you one very important thing. Let me tell you one very important thing, that whatever you do, you must do it immediately. मैंने अपनी पेस चेंज कर ली, और अक्सर मैं पढ़ाते पढ़ाते जब पढ़ा रहा होता तो लेडीज एंड जेंटलमैन दिस, और एंड पे मैं इतना तेज हो जाता हूँ कि वो बजाय इसके लोग उसको माइंड करें, दे स्टार्ट टू एंजॉय इट, बिकॉज मैं उसको एंड करना चाह रहा हूँ। एक ही सांस में इंपॉर्टेंट बात को एकदम से कह देता हूँ, जैसे मैंने अभी कही। देन कम्स द वॉल्यूम। आपने ऊंचा बोलना है। इन्फ्लेक्शन कुछ और है। ये आप हल्के बोलने के अंदर भी बहुत हल्के हो सकते हो और बहुत ऊंचा बोल सकते हो। Volume that must be appropriate to the size of the audience. और यार इन्ना ਉੱਚਾ ਤੇ ਬੋਲੋ ਨਾ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਪਹੁੰਚ ਜਾਏ ਉੱਥੇ तक। ये वॉल्यूम होता है। तो वॉल्यूम बहुत ऊंचा भी नहीं होना चाहिए और वॉल्यूम बहुत कम भी नहीं होना चाहिए। इस तरह से आप चीजों को मैनेज कर सकते हो। एंड देन कम्स enunciation, repetition। मेरी बात समझ आ गई है ना? मैंने तुम्हें कहा था ना समझ लो मेरी बात को। तो देखिए आप रिपीट कर रहे होते हो, और जब आप बात को रिपीट करते हो आप उसके ऊपर एम्फेसाइज करते हो, that this is the important thing which I am talking to you, please listen to it। सर मेरा एक क्वेश्चन सर एक क्वेश्चन था सर। जी बताएं सर। ये इन्फ्लेक्शन और पेसिंग में जो आपने बताया था, इन्फ्लेक्शन में वो आपने कहा था राइजिंग एंड लोअरिंग,
लोअरिंग एंड राइजिंग, लोअरिंग एंड रेजिंग योर वॉइस, रेजिंग योर वॉइस, ठीक है। और ठीक है। पेसिंग में सर इसमें डिफरेंस ये दोनों बात मिलती को जुलती जल्दी हैं? जल्दी कहना या आहिस्ता आहिस्ता कहना, ये पेसिंग होता है। ठीक है, ओके सर, थैंक यू। इन्फ्लेक्शन ना वेरिएशन है बेटा, जैसे वेव्स नहीं होती, साइन वेव्स होती हैं, बिल्कुल बिल्कुल, वो इन्फ्लेक्शन जैसे है ना? फिजिक्स में वो पढ़ाते हैं जी, बिल्कुल होती अब है। देखो, जैसे जैसे मैं एक बात आपसे कहता हूँ, यार खुदा के लिए मेरी बात समझो यार, यार अगर तुम नहीं ऐसा करोगे ना, मैं तुम्हें फैक्ट बता रहा हूँ कि तुम नुकसान उठाओगे। इन्फ्लेक्शन समझ आई इसके अंदर? जहां बात नुकसान की थी मैंने गुस्से में बताई और आवाज को ज्यादा तेज कर लिया। बिल्कुल खुदा के लिए मेरी बात मान लो यार, मान लो यार मेरी बात, ये इन्फ्लेक्शन है। पेसिंग, आप कितनी स्पीड के साथ बात को कर रहे होते हो। ओके, आगे चलूं? ठीक है, यस सर, थैंक यू। नाउ कम द स्टार्टलिंग विजुअल्स। जैसे मैंने कहा था, वो बच्चा आया और गन लेके ठा 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 फायर कर दिया उसने और सब डर गए। तो उसने बताया ये होते हैं टेररिज्म। सारी जिंदगी किसी को भी नहीं भूलेगा, मुझे भी नहीं भूलेगा। उसने जो हरकत की, दैट वाज सो। इसी तरह से एक ने मोटर बाइक सेफ्टी पे देनी थी, आप यकीन करोगे हॉल में मोटर बाइक ले आया और एंटर हुआ और उसने बिल्कुल मोटर बाइक का अगला व्हील उठाया हुआ था। क्योंकि मैं अलाउ करता हूँ हर किस्म की हरकतें अपनी प्रेजेंटेशंस के अंदर, आओ करो। मैं तो कहता हूँ कि ओपन होके, जितना तुम ओपन होके कर सकते हो करो, उतने ही आप चैलेंजिंग होते हो, उतने ही आप एक्सेप्टेबल होते हो लोगों। अब स्टार्टिंग विजुअल्स के अंदर अगर टेररिज्म आपने बताना हो, तो मुझे आप बताओ कि आप कत्लो गारत की वीडियोस नहीं दिखाओगे? दो चार ऐसी वीडियोस दिखा दी तो लोग तो खुद ब खुद टेररिज्म के अगेंस्ट हो जाएंगे। और ये विजुअल्स डिपेंड करती हैं आपका टॉपिक क्या है। अगर आपने नेचर को दिखाना है तो नेचर की वो चीजें दिखाएं जिसको देख के हमारी चीखें, अमेज़न के बर्ड्स दिखा दो, देखो लोग किस तरह से नेचर से लविंग के ऊपर चले जाते हैं। फिर प्लान्ड क्वेश्चंस होते हैं। प्लान्ड क्वेश्चन हमेशा लिख के साथ रखे होते हैं कि जब कोई ये बात करेगा मैं ये वाला क्वेश्चन जो है ना उठा दूं। तो प्लान्ड क्वेश्चंस बेसिकली गिव्स यू द डायरेक्टेड और द फोकस्ड वे, और बहुत जल्दी फिर चीजें जो है ना वो सिमटना शुरू हो जाती हैं। टेस्टिमोनियल्स हैं, आपने अकाउंट्स की बात कर रहे हो तो किसी फ्रॉड के अकाउंट की बात कर रहे हो, अकाउंट की टेस्टिमोनियल्स उठाएं, डिस्ट्रीब्यूट कर दें। आप एनुअल रिपोर्ट्स की बात कर रहे हो तो अपने स्टूडेंट्स को, अपने ऑडियंस को एनुअल रिपोर्ट डिस्ट्रीब्यूट कर दें। डेमोन्स्ट्रेशंस देनी हो, हर चीज की डेमोन्स्ट्रेशन दे के आप बता सकते हैं ये अकाउंट ऐसे फाइनल करना है। मार्केटिंग के अंदर जब आपने पिच देनी है तो इस तरह से बोलना है। एंड व्हेन यू आर टॉकिंग टू द सीनियर्स, आपने इस तरह से कल्चर मैनरफुल होकर बात करनी है। उसमें एक्टिविटीज डालें। मैंने भी, मेरी ट्रेनिंग थी 2 हफ्ते पहले, मैंने बॉल्स रख दी वहां पे, टीचर्स थे, कॉलेज के टीचर्स थे, मैंने बॉल्स रख दी और मैंने एक टीचर को कहा कि आप बॉल्स फेंकना शुरू करो, दूसरा कैच करेगा और वो जो कैच करेगा वो आपकी तरफ फेंकेगा। अच्छा, कोई कोई मकसद नहीं था एक्टिविटी का। मकसद क्या था? सारे पागलों की तरह उनको देखना शुरू हो गए और हंसना शुरू हो गए, बॉल गिर रही है, एंजॉय कर रहे हैं। और एंड पे मैंने कहा बड़ा एंजॉय कर लिया, आओ ना जरा बोर्ड थे। एंड दैट्स ऑल। So many times a thing which is not relevant to the topic becomes the most relevant because it gives you the way to engage audience. और प्रेजेंटेशन स्किल्स के अंदर हमारा सबसे इंपॉर्टेंट मामला क्या होता है कि हमने ऑडियंस को एंगेज करना है। एक्सरसाइजेस टू इन्वॉल्व द ऑडियंस, बहुत सारी एक्सरसाइजेस हम दे देते हैं। फिर आपकी मूवमेंट पर्पसफुल होनी चाहिए। अगर मेरा कैमरा आपको नजर आ रहा है, मैं आपको जरा मूव करके दिखाता हूँ। अक्सर होता क्या है, अक्सर ये होता है कि हम स्टेज के ऊपर मूव कर रहे होते हैं, तो आपने मूवमेंट को करना है इंश्योर, लेकिन याद रखें जितनी मूवमेंट हो वो बैकवर्ड फॉरवर्ड हो, वो साइडवेज हो, दैट मस्ट बी पर्पसफुल। वो किसी ना किसी बात को चेंज करने के लिए या टॉपिक को हाईलाइट करने के लिए होनी चाहिए। अगर आप विदाउट पर्पस स्टेज के ऊपर मूव करते रहते हो तो फिर बंदरा वाला काम हो जाता है, वो ठीक नहीं है। ठीक है, फिर लोग हंसना शुरू कर देते हैं। कोई टीचर, एक स्टूडेंट ने ऐसे किया था प्रेजेंटेशन स्किल्स के अंदर, इधर से उधर जाना शुरू हो गया, इधर से उधर जाना शुरू हो गया, तो समझ ही नहीं मैंने करना क्या और लोग हंसना शुरू हो गए। तो
whatever you do, that must be purposeful. ये स्लाइड क्लियर होगी बच्चों? जी सर। यस सर। आगे चलें। बोर तो नहीं हो रहे हो? नो नो सर। अच्छा चलें। एक मैजिक इंग्रेडिएंट जो बड़ा इंपॉर्टेंट था, मैं आपसे इसके ऊपर बात करना चाह रहा था, वो है एंथुसियाज्म। इफ यू आर नॉट पैशनेट, स्टीव जॉब की कोटेशन है, to create a dent in the universe, you need only one thing, and that is passion. If you have the passion, you can do anything in this world. But if you don't have the passions, you can't do anything. Because the person who has the passion can do each and everything by his passions. He learns things, he involves himself, he travels, he learns. तो अपनी प्रेजेंटेशंस के अंदर, अपने काम के अंदर, जब आप लोगों से बात कर रहे हो, जब आप लोगों को प्रेजेंट कर रहे हो, आप अकाउंट प्रेजेंट कर रहे हो, वट एवर द रिपोर्ट्स वो प्रेजेंट कर रहे हो, आपके अंदर एक पैशन और एंथुसियाज्म रहना चाहिए। ओ यस, दिस इज व्हाट, लुक एट सर, ये ऐसे हुआ, ये ऐसे हुआ। लोग ना खामखा इन्वॉल्व होना शुरू हो जाएंगे। और बच्चों, एक और चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है दैट यू मस्ट ऑलवेज स्माइल। एक स्माइलिंग फेस के साथ लोगों को फेस करें। जरा सब स्माइल करें, मुझे नजर तो नहीं आ रहे हो, प्लीज सब स्माइल करें जरा। हेल्दी फील किया? बोलो। यस सर। जी जी सर। सर। यार जब आप यस दूसरों सर। को देख जब आप दूसरों को देख के स्माइल करोगे ना, यकीन करें एक बड़ा जबरदस्त इन्वायरमेंट क्रिएट हो जाएगा। अपनी बात जब आप कर रहे होते हो ना, योर फेस मस्ट बी स्माइलिंग, द पीपल मस्ट लुक एट योर फेस। और अगर आप स्माइलिंग नहीं होंगे और बड़े एरोगेंस के साथ चीजों को प्रेजेंट करोगे, people may not listen to you। तो स्माइलिंग फेस के साथ बुरे लोग भी आपके साथ अटैच हो जाते हैं। अब है कि आप अपनी प्रेजेंटेशन के दरमियान लोगों से, आर्टिफैक्ट से, चीजों से जब डिस्टर्ब होते हैं, फिर क्या करना है। आई थिंक दिस इज इनफ फॉर टुडे। इससे ज्यादा आपको हजम भी नहीं होगा। तो बाकी हम कल यहीं से अपना शुरू करेंगे, डीलिंग विद द नर्व्स। और ये करने के बाद फिर मैं आपको एक वर्कशॉप दूंगा और फिर हम कुछ रिटर्न कम्युनिकेशन के ऊपर भी आएंगे। और मैं आपसे पूरा इस कोर्स का जो एक प्लान है वो मैं इंशाल्लाह आपसे आज या कल में शेयर कर देता हूँ व्हाट्सएप के ऊपर। तो मैंने ग्रुप में वैसे आज ये शेयर कर दी हैं और आज यहाँ पे भी शेयर हो गई हैं, आप इसको भी देख लीजिएगा। कल वाली एक्टिविटी जो है मैंने आपको दी थी, इंट्रोड्यूसिंग योरसेल्फ, कितने लोगों ने की है? मुझे अभी तक कोई रिसीव नहीं हुई। जरा मेरा मोबाइल दीजिएगा जी। सर मैंने आपको व्हाट्सएप की थी सर, अदनान मैं देख इश्तियाक। ले, अदनान ने की है। बेटा एक मरतबा उस ग्रुप में सारा करना अगर शुरू कर दो ना, तो मैं आपकी जो भी मिस्टेक्स हैं हम उनको देख लेंगे। अदनान कौन से वाले ग्रुप में किए बच्चे आपने? सर वो आपका नंबर पे की थी, ग्रुप उसके बाद ऐड किया था ना। अच्छा, ग्रुप उसके ग्रुप में। बाद ऐड हुआ है। यस सर। ठीक है, तो वो आज ग्रुप आपने में अपना फिर नंबर दिया था कल। जी जी, तो आपका नंबर क्या है? एंड पे क्या आता है? सर 221 है सर। 221 पे आपने की। अच्छा, मुझे हाँ बिल्कुल आ गई। अच्छा, and I do work in construction, business and property. And my hobby is listening and reading Quran and Islamic books. Thank you. अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। जी अच्छी है, लेकिन देखिए मैंने आपसे कहा था कि बॉडी लैंग्वेज का इस्तेमाल करना है। कैमरे को ना ऐसा फिक्स करें कि आपकी पूरी बॉडी पोस्चर सामने खड़ा हुआ यस नजर सर, आए। वो बिल्कुल सर, वो फिक्सिंग का इशू था, वो मैंने फ्रंट कैमरे से बनाई है। नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह वो स्टैंड ले आएंगे, तो इंशाल्लाह ये कमी थी। कोई बात नहीं, आप इसको ना आज सारे बच्चे ये करें, अपनी वीडियो एक बनाएं और जो ग्रुप बने ना ग्रुप में भेज दें। ठीक है, फिर मैं और नाम ओके। के साथ क्योंकि आपका आ रहा होगा, तो फिर वो इंशाल्लाह उसके ऊपर हम फर्दर काम करके इसको देख लेंगे।
अब आपने करना क्या है, आज तक के क्वेश्चन अगर कोई है तो आप मुझसे क्वेश्चन आंसर कर लें, फिर मैं आपको कुछ एक दो चीजें और बताता हूँ और फिर हम वाइंड अप करते हैं। सर ये जो आपकी वीडियोस हैं इनकी रिकॉर्डिंग मिलेगी? रिकॉर्डिंग मेरे सामने कैमरा लगा हुआ हो रही है, कर देंगे, रिकॉर्डिंग भी चढ़ा देंगे इंशाल्लाह, वो ऑडिट हो जाएंगे। वैसे मेरा एक पेज है इफ्तिखार शेख के नाम से, आप उस पेज पे जाएं, कुछ वीडियोस वहाँ पड़ी हैं, उसको सब्सक्राइब भी कर दें, और कुछ वीडियोस वहाँ पड़ी हुई हैं, और बाकी वीडियोस में इंशाल्लाह यूट्यूब पर है सर? यूट्यूब के ऊपर इफ्तिखार शेख लिखोगे तो उसमें कुछ वीडियोस। सर जैसे अगर ये लेक्चर जो रिकॉर्ड हो रहा है इसका अगर लिंक मिल जाए तो ज्यादा आसानी रहेगी। ये तो वो ये होगा उनसे कि बात अगर कोई कीजिएगा, अली जो बैठे हुए हैं हमारे अपना जी फैसलाबाद में, अली आप जी ऑनलाइन हैं? तो अली को जो है वो कहें ये रिकॉर्ड कर रहे होंगे, नहीं होगी तो जो मेरी रिकॉर्डिंग हो रही है, ठीक है कैमरा सामने लगा हुआ है मेरे ऑफिस में, वो जी इंशाल्लाह ठीक है फिर मैं सर। आपको क्योंकि सर मैं वो दे बाकी सब्जेक्ट जो है वो हमारे रिकॉर्डिंग में आ जाते हैं, तो अगर ये आ जाए तो एक दफा मजीद सुनने से वो चीजें जो है ना दोबारा हाँ सर, क्योंकि कुछ ऐसा होता है कि अगर आवाज समझ में नहीं है या कुछ, क्योंकि ड्रॉपेज बीच बीच में नेट की चलती है, तो उससे ये होगा कि अगर रिकॉर्डिंग हमारे पास होगी ना तो उसमें समझने में ज्यादा आसानी रहती है। अभी तक क्लियर था सब, कोई ऐसा इशू नहीं था, क्लियर सब था, लेकिन कुछ चीजें ऐसी थी कि मतलब जैसे अब क्रिएटिविटी के बारे में आपने बताया वो तो मैंने लिख लिया अपने पास। अब इन्फ्लेशन और फेसिंग के बारे में ना मुझे थोड़ा इशू हुआ था, तो ये है कि उसमें मैंने लिख लिया है कि जल्दी जल्दी कहना है या आहिस्ता कहना। अब इन्फ्लेशन और इसका जो डिफरेंस है ना, इसमें मुझे थोड़ा इशू आ रहा है, तो ये है कि अगर लेक्चर रिकॉर्ड होगा ना तो मैं काइंडली प्रॉपर सुन लूंगा, क्योंकि मैं ऑफिस में हूँ अभी, इसलिए। आप कराची से हो? जी से हूँ। देख लो, मैंने तुम्हारा एक्सेंट पहचान लिया, मैंने 10 साल लगाए हैं कराची मलीर कैंट में। जी नहीं, हम तो खैर सर डजंट बचपन से मैटर, यही है। ये मैं सारी इंशाल्लाह अपलोड एडिट करके सब के सब ग्रुप में अपडेट कर देंगे, आप वहां से वीडियोस भी ले लीजिए। हाँ सर, क्योंकि देखिए ग्रुप हो चुका है, बन चुका है, तो वहां पे अगर चीजें आ जाएंगी तो आसानी रहेगी। आ जाएगा बेटा, सब कुछ आएगा इंशाल्लाह, हो आपकी गया, ठीक। थैंक एक्सपेक्टेशन यू। से ज्यादा आएगा इंशाल्लाह। जज़ाकल्लाह। एनीबॉडी एल्स हु वांट टू आस्क एनी क्वेश्चन? नहीं, चले, जो लोग नजदीक के हैं ना वो कोशिश करें लाहौर कभी चक्कर लगे तो मेरे पास चक्कर जरूर लगाएं, ताकि ये है कि चलें, एक फेस टू फेस कम्युनिकेशन से ना बड़ा 5-10 मिनट की कम्युनिकेशन भी बहुत बड़ा असर कर देती है। अच्छा, तो आपने भाई काम करना है, जो इंट्रोड्यूसिंग योरसेल्फ है वो सब की सब वीडियोस आपने उसके ऊपर डालनी है। लेट मी डिसाइड कि फर्स्ट, सेकंड और थर्ड कौन सी हैं, तो कल फिर हम वो नाम भी जो है ना अपडेट करते हैं कि हु इज द फर्स्ट, हु इज सेकंड एंड हु इज द थर्ड। अच्छा, मुझे अली से क्वेश्चन करना था, अली क्या हम इनकी जो ये जो इसको एवेलुएट कर रहे हैं, नंबरिंग इनकी लगेगी बच्चों की? मैं अली से बात कर रहा हूँ, फैसलाबाद, आईटी मैनेजर जो हैं। सर काइंड रिपीट कीजिएगा, मुझे आवाज नहीं आई आपकी। मैं ये कह रहा हूँ कि क्या इन बच्चों की ग्रेडिंग जो है एवेलुएट हमने करनी है ना? आई थिंक मैं आपसे उनको पूछ डिटेल्स वगैरह आपको पूछ के मैं ना बता दूंगा आपको मुझे थोड़ी सेंड देर कर दीजिएगा, ताकि कल ये जब सबकी वीडियोस आज अपलोड हो जाएंगी तो मुझे ये भी पता चल जाएगा कितने पार्टिसिपेंट्स हैं, ठीक है, तो मैं उनकी ठीक ग्रेडिंग करके भी आपको फिर भिजवा दिया करूंगा, ताकि रिजल्ट भी इनका बनता चला जाएगा। ठीक है सर, ठीक। लो बच्चों, थैंक यू वेरी मच, कल इंशाल्लाह हम 2 बजे फिर मिलते हैं, और कल इसी लेक्चर को कंटिन्यू करेंगे, और इसके बाद आपको एक जबरदस्त किस्म की फिर वर्कशॉप देते हैं इंशाल्लाह। ठीक है? ओके ओके सर, सर। अल्लाह ओके सर, थैंक यू थैंक यू, वेरी अल्लाह मच। हाफिज। हाफिज। अल्लाह हाफिज़ सर।